एचडीएफसी बैंक जाके आ रहे सेंट्रल बैंक में। आज वो ड्यूटी देगा बोला। बढ़िया। एक महीने पहले जो मोबाइल लगाए थे। ठीक है, सही है। तो वहां पे खाना खा के आया। गुड आफ्टरनून प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवयान जी। वी विल स्टार्ट जैसे ही पार्टिसिपेंट्स का संख्या यहाँ पे 20 दिखाएगा, वी विल स्टार्ट। ओके।
हेलो। गुड आफ्टरनून। वेलकम गुड प्रेसिडेंट आफ्टरनून, गुड सर। आफ्टरनून। क्या हाल है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है दिवान भाई? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसे हो प्रतीक? अच्छा है भैया एकदम। गुड गुड गुड। वेलकम वेलकम। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट क्या? ठीक है प्रेसिडेंट सर। So, a very good afternoon to one and all present here. Friends, this is the hottest topic, I guess, whenever it's relating to AI. And the topic is very interesting. The use of AI from 9 a.m. to 5 p.m. So, whatever we require from AI during the office hours. So, before we proceed, I would request for whomever it is possible to please rise up because I'll be playing the motto of the ACAE. साउंड नहीं आ रहा दिवान? Thank you, everyone. May I now request the President of the Association of Corporate Advisors and Executives, CA Neeraj Harodia, to please address the gathering. Thank you, Devan. I welcome CA Pratik Ganeriwal, and thank you very much for your uh, taking out your time and giving this training, especially on the very hot topic that is AI. And this is something where uh, जितना भी आप सीख लीजिए वो कम है. एंड आई थिंक इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है. So definitely today all our members will be getting benefit from your lecture. Apart from this, from last 2 months, we are doing various kind of program, and here I would like to take the opportunity to update you about some future programs and many programs which is still we have not announced. So we want you to say, block your date for all those programs. So on 5th of December, we have one program on IBC, and the speaker will be Mr. Asis Makija, is a very learned speaker in IBC. Then for 19th, we are planning for one full day AI conclave, where we will be giving hands-on training, especially related to Python. So we'll share the details shortly. Apart from that, in January, we will be coming with a conclave on IPO, because now everywhere we see that lot of curiosity and lot of industries and companies are looking for opportunity, how they can be take benefit of this IPO cycle. So that program is on 9th of January, and very learned speakers are coming from Mumbai. Mr. From the Pentamat, Mr. Mahavir Lunawat will be there, and then from J Sagar, attorneys will be there, and there are many more speakers. We will share the detail.
And for February, we have finalized the program with BCAS, Bombay Chartered Accountant Society. So 7th February will be post the budget, and since new income tax act is already in place, and that will be applicable from 1st April. So there also we will be having program on 7th of February. And then on 21st February, there will be a session with NAFRA. So we have requested NAFRA chairman for their time. So definitely we will look for his presence as well. And on 13th March, we will have a session on structuring, how through different kind of structure you can plan, uh, how you should do succession planning through structuring, through trust. So that session will be taken by our learned speaker from Mumbai, so they will be there. So these all are the some of the technical programs we have planned in the mid. We also have two fellowship program on 17th January. There is a program for 1 day event to Raichak, Taj Ganga Kutir, a new property recently acquired by Taj, and that property is managed by Taj. So there's a 1 day stay, and we have kept charges of 27,000. So those who are interested, please get in touch with us. And in the month of March, we have one 4 days cruise program. The cruise will go to Lakshadweep, and that's a total 5 days program. And the cruise will leave from Bombay, and then it will back to Bombay. So that also we have shared, and almost booking is done. So if anyone is still interested, they can get in touch with us. So with this, we are trying our best that on part of knowledge, on part of fellowship, we all should be engaged more and more. I have one more request. This kind of group discussion is definitely with a very clear cut objective to improve your speaking skills, improve your communication skills. So we want new speakers to come out of these initiatives. So my humble submission, if you have in mind to become speaker, you want to speak on any topic, please get in touch with Devan. He's doing extremely great job, and since last 2 months he has arranged, I think, Devan, more than 5 GD we have done. Am I right? Ah, so we have done that, and many more we have in plan. So definitely आप जरूर से इसमें जुड़िए. And apart from that, I'll again request those who are not member of ACA, please be become member of ACA. So with this, I conclude my words here and hand over the proceedings to Devan. Thank you very much. Thank you, President Sir. Friends, we will not waste your time by giving any context about the topic because the initiator, the speaker, would be the best person to do that. I would like to introduce him. He's a chartered accountant and a cost accountant. He has also done his company secretary internship. Obviously, he's a BCom honors graduate. What is most important about him today is that he's a finance management manager at Coal India Limited. He's seated at Kolkata, the head office, has 14 years of diversified experience across various areas of finance and corporate functioning. He has given special contribution award for individual excellence in outstanding performance and proficiency at Coal India during 24-25. Let me also tell that he was a chairman of the Dhanbad branch of the Central India Regional Council of ICAI during 2021 when the branch won the best branch award in its category. Needless to mention that he got 33rd rank in CMA intermediate and 44th rank in CMA final examinations. He has served as a faculty for GMCS orientation, ITT core skills, and various other initiatives of ICAI. He has been a speaker in multiple professional platforms, including the Indian Institute of Coal Management, Damodar Valley Corporation, Financial Literacy Advisory Board, and others. And of course, the name of ACAE gets added today. He has also engaged as faculty for career counseling, guiding school students pursuing the chartered accountancy course. It is indeed a pleasure to have Pratik ji amongst us today. Pratik ji, this is a virtual session and the ACAE would like to present a virtual memento to you. I hope you are able to see the screen. Yeah. Yeah. Thank you for So the memento. with this, Pratik ji, it's all over to you now. Yeah. Uh, Thank you, Devyanji.
and Neeraj. It is an opportunity for me to be here with the members of ACAE and to present and to learn. It's a learning session for both of us. It's if it's an interactive class, we both are going to learn from each other. Since AI is a very hot topic, and no one can say he knows all of the AIs, because we can see that AI is growing day by day in different perspectives, in different fields. We can feel the evolvement of AI. And as we know that during our journey of life, we grow many fruits in us. Some are inner fruits and some are outer fruits. So learning about AI is something our inner fruit, and what we deliver to our client and the happiness and the amount what fees we get, that is our outer fruit. So we need to, for the good outer fruit, if we want, so we have to grow our inner fruits itself. So I would like that we should have an interactive class. You should use the chat box, so that when it is required, we will be having some question answer round at the last. But still, if you have any doubt, or we will be discussing among ourselves, so I will appreciate if some discussions, if some you are answering to the questions. So it will be a very nice. So I'm opening my PPT. Uh, if you are able to see, please tell me. Now I'm sharing it. Yes, Yeah. My PPT is yes. visible. Yeah, it's The visible. topic is from 9 to 5 with AI in everyday professional life. Now, the first, what things we will be covering in our agenda. So, what is AI? What is GPT? Why AI matters for professionals? How to write powerful prompts? Because generally, what we see, what the answer we are expecting from the AI, we are not getting that answer. So, that can be a reason that our prompts are not correct. Practical office cases, we will practical office cases, we will have some practical discussions. Risk and precautions, yeah, AI do have many risk and precautions we have to take. So we have to keep in mind while using the AI. We have some live interaction and activities also. Regarding that, a basic info, a basic understanding of the AI, can anyone please tell us, or what is AI do you think is? Can anyone of you can please share his views that what he understand the AI is among the participants? Anyone can unmute himself. Okay. Uh, so AI yeah, AI is a generative tool which is making our life easier by as in we don't have to write complex calculation or complex procedures. It's just that we are questioning, and they are giving us answers. And whatever used to take a lot of time earlier, now it's take within a fraction of second, and our life is getting easier and easier. easier. Yeah, means what the what is the inputs you are giving, according to that he understands the input and give you output which is good, which is apt for you. So AI is making our life very simple and easy. Why? Because we don't have to search in many websites or many places. It's a one point solution. We have to go there, we have to give our problem, he will give a solution. So this is a one point solution for us.
So basically what Mamta ji said is very correct कि it is making our work easy. पर हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या हम जिसको इजी बोल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इट इज मेकिंग आवर वर्क इजी इन वन टास्क ओनली और मल्टीपल टास्क। तो किस तरह से आज हम लोग ये देखेंगे अलग अलग हमारे ऑफिस के काम में या हमारे पर्सनल वर्क में हम लोग किस तरह से अपने लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। तो सर ये हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे अभी तक, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। तो क्योंकि हमें बहुत चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कि हमें पता नहीं है कि ये काम को इस तरह से भी किया जा सकता है या ये एआई टूल से किया जा सकता है। एआई वर्ड इज वेरी वेग, इसमें बहुत सारे टूल्स है एआई का। अगर हम चाहे कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपका सब काम कर दे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक ममता जी विल एग्री टू दिस कि एक ऐप से या एक एआई से आप सब तरह का काम नहीं कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट इट कैन हेल्प यू, बट 100% आपका जॉब या 50% आपका जॉब भी हो सकता है कि आपको वो नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्ट्री आपको आंसर वो पर्टिकुलर एआई से या सॉफ्टवेयर से नहीं मिल पाए। तो देयरफॉर this is the we will be learning about that also today. तो एआई एक हमारे प्रॉब्लम्स को या इनपुट्स को वो थिंक करता है, लर्न करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो कैसे सॉल्व कर देता है, व्हाट एक्सपर्टाइज इज ही हैविंग। तो एआई के ऊपर क्या है, बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं, उसे पैटर्न्स बहुत सारा दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक वर्ड लिखेंगे द बर्ड इज और डैश कर देंगे तो वो प्रेडिक्ट कर लेगा फ्लाई, या द बर्ड इज ईटिंग, बर्ड इज, तो वो इजी जो सिमिलर होगा एकदम प्रेडिक्ट कर लेगा द बर्ड इज फ्लाइंग। तो हाउ इट कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि इस पे बहुत सारे पैटर्न्स रिसर्च किए हुए हैं और यही हमें काम आता है, चाहे वो हम लॉ के फील्ड के हो, फाइनेंस के हो, एचआर के हो, हमारा कोई भी फील्ड हो, वी कैन एग्री। व्हाट इज जीपीटी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी विथ दिस? जीपीटी का फुल फॉर्म, चैट जीपीटी तो हमने सुना है, पर जीपीटी क्या होता है? Generated pre-trained module ट्रांसफॉर्मर, transformer. जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड प्रतीक जी। नाउ ये ये जो तीन वर्ड आपने प्रतीक जी बोला है मुझे, ये तीनों का अपना एक मीनिंग है। जनरेटिव, प्री ट्रेंड, ट्रांसफॉर्मर, इसका कुछ मीनिंग बता पाएंगे प्रतीक जी आप? जनरेटिव का मतलब क्या होता है? आई विल हेल्प यू विद दिस। मेरी आवाज आ रही है अरे सर? फोन किया हाँ था क्या? आपकी आवाज आ रही है। जी। अरे यार, जनरेटिव वो आपको मोबाइल जो से भी मैं आप कर रहा था, बोलेंगे कुछ वो बना के डिस्कनेक्ट हो देगा, गया। जनरेटिव का मतलब? कुछ बना के देगा, जो भी आप उसको कंटेंट देंगे उसके साथ साथ या रियल टाइम पे। हाँ, प्री ट्रेंड उसको जैसे मॉड्यूल पे हम लोग अपना अकाउंट बनाते टाइम देते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे किस तरीके के कंटेंट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, डिटेल चाहिए, कंसाइज चाहिए, और उसका जो नहीं एक इसमें डेटाबेस इसमें सर्वर है उसमें उसके पास इसमें जो मैं रिपोर्ट। आई विल ऐड ऑन। जी। जनरेटिव हो गया कि उसे बहुत सारे पैटर्न्स पे काम किया हुआ है उसने, तो उसे पैटर्न्स पता है। अगर आप कुछ दो पीडीएफ दोगे, भाई इसको मर्ज कर दो, तो उसको पैटर्न पता है, ये टू पीडीएफ को मर्ज करना है, ओके, मर्जिंग ऑफ पीडीएफ या पेजेस। और आपका प्री ट्रेंड हो गया, प्री ट्रेंड का मतलब हो गया उसमें बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया टाइप के बहुत सारे डेटा उसमें डाले हुए हैं, जो जिसपे वो काम करता है। अगर आप पूछोगे कि वेयर इज कोलकाता, तो वो बता देगा कि इट इज इन वेस्ट बंगाल, इट इज इन इंडिया। तो उसे इतना डेटा दिया गया है जिसपे वो काम करता है। तो प्री ट्रेंड, ही इज प्री ट्रेंड ऑन दैट। ग्राफ्स बोलोगे तो उसे ग्राफ्स आता है, सब चीज उसको दिया हुआ है। और ट्रांसफॉर्मर मतलब वो एक 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 पाथ का यूज करता है जो कि विच विच ट्रांसफॉर्म्स द डेटा। तो ये हो गया आपका जीपीटी का फुल फॉर्म एंड इट्स फंक्शन। ओके, नाउ एलएलएम मॉडल जो है ये जीपीटी यूज करता है।
LLM मॉडल हो गया आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसपे इनको ट्रेंड किया गया है, और ये बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज भी समझता है, हमारी ह्यूमन लाइक बिहेवियर ये करता है। अगर आप इससे पूछोगे कि व्हाट इज द वेदर नाउ, तो इट विल टेल यू द वेदर। तो मतलब ये हमारे बात समझ रहा है, वी डोंट हैव टू टाइप। तो हमें इसे इंस्ट्रक्शन नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी नहीं बताना कि मैं अभी कैलकाटा में बैठा हूं, तो आप मुझे कैलकाटा का बताओ। उसे पता है कि आपका लोकेशन क्या है। इट विल गिव यू द वेदर ऑफ द करंट लोकेशन, वेयर आर यू, क्योंकि ये मोबाइल से या इससे टाइम सिंक्रोनाइज करके बता देता है ये। और ये इट इज आइडल फॉर ड्राफ्टिंग रिसर्च एंड ये जीपीटी के बारे में अपने बात कर रहे हैं, एआई के बारे में नहीं। एआई इज अ पार्ट ऑफ जीपीटी। नाउ नेक्स्ट सर, हमारे बारे में काम की तो यही चीज है कि अंकल हमें ये हमारे काम की क्या है, खाली ले हमारी काम की क्या चीज है। वाई शुड CS CMA एडवोकेट्स केयर, व्हाट वाई शुड। सर, हमारा जो रिपीटेटिव काम है, आप सब एग्री करेंगे कि आप अगर डेली ऑफिस जाते हो तो देयर आर मेनी वर्क्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर, और हम उतना ऑफिस में ये चीज में ध्यान नहीं देते हैं कि हम कुछ नया करें। वी ट्राई टू डू द जॉब विच इज इन फ्रंट ऑफ अस, वी ट्राई टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। या इस तरह के रिपीटेटिव काम हम नहीं कर रहे हैं, पर हमारे ऑफिस कोलीग्स जो है, हमारे आर्टिकल्स जो है, वो सब काम कर रहे हैं। तो सर वो इस तरह का काम क्यों करते हैं डेली, रिपीटेटिव काम? क्योंकि डेली कोई डेटा आता है, उसको हमें कंबाइन करना पड़ता है, एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन हमें सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं पता। अगर शॉर्टकट नहीं पता तो वो शॉर्टकट एआई के थ्रू हो सकता है कि हम 50% अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दे, 50% हम जो है अपनी टाइम सेव कर ले। तो क्या सर 50% जरूरी है क्या कि हर काम में हमारा 50% प्लस ही टाइम सेव होगा? डू यू ऑल एग्री विद दिस कि हम 50% से ज्यादा ही टाइम सेव करेंगे? कैन एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड कि हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई? या आप लोगों में अगर कोई ने 70-80% एआई we का can यूज save if किया it है is in और filing and आपने, repetitive tasks. यस, We can save 70-80% if it is the same filing repetitive task. We just have to modify मतलब basic details. प्रतीक जी, ये बोल सकते हैं अपने कि ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, एआई का इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि हमें 90% भी हम कोई टाइम को सेव कर ले, या 20% भी सेव कर ले। दिस डिपेंड्स ऑन दी वर्क, कि क्या काम हम एआई से कराना चाह रहे हैं। सो एआई हेल्प करता है हमें ड्राफ्ट करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, कुछ रिसर्च करने में, कंप्लायंस अंडरस्टैंडिंग करने में, इम्प्रूव करने में। हम एक क्लाइंट को अच्छा सर्विस कैसे दे सकते हैं, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है जो हम लोग कॉमनली यूज कर सकते हैं। आपके माइंड में और कोई ऐसा काम आ रहा है जो हम लोग एआई से कर सकते हैं जो यहाँ पे नहीं है? कोई ऐसा काम आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ एआई से, या आप लोगों ने ड्राफ्टिंग का कुछ काम एआई से करते हैं तो कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग किस तरह का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा विद द विच एआई यू हैव वर्कड विद? बेसिकली मैंने इस साल अपना बोर्ड रिपोर्ट का जो कंटेंट ऑफिस से जनरेट करते हैं वो एआई से रिव्यू कराया था CAGPT से। सो देयर वाज फ्यू थिंग्स व्हिच आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोर्ड के पॉइंट में ये पॉइंट नहीं दे रहे थे कि डायरेक्टर डिस्क्लोजर और MVP1 वगैरह बोर्ड को मिल गया है एंड बोर्ड ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है, बट हम बनाते थे हर साल। सो ये पॉइंट वहां पे देना है, ऐसा मैंने किसी रिपोर्ट में देखा नहीं था, बट ये पॉइंट वैलिड लगा। सो आई इनकॉर्पोरेटेड दैट पॉइंट फ्रॉम GPT रिव्यूइंग में, ये पता चला उसको। देन बहुत सारे पॉइंट्स जैसे हम लोग दे रहे थे उसको और कैसे फाइन ट्यून कर सकते थे ड्राफ्टिंग के लैंग्वेज में, ये GPT से हम लोग को समझ में आया। अभी रिसेंटली, हाँ प्रतीक जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ ये बात कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स जो हम लोग देते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो उसको हम लोग जीपीटी में अपलोड करके
उसकी फाइंडिंग्स बना सकते हैं, या हमारे पास अगर कोई चेकलिस्ट है तो उससे हम देख सकते हैं कि हमारी फर्म जो है वो कहाँ बैकफुट में है, ताकि हम उसको जो है अपने फर्म में करेक्ट कर सकते हैं। मतलब रिसेंटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कुछ फर्म्स को एक पर्टिकुलर अथॉरिटीज में भी नेफ्रा ने उसको बहुत सारे नॉन कंप्लायंस के नोटिसेस दिए, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जीपीटी में डाल के उन्होंने रिपोर्ट्स ये निकाला कि क्या क्या पॉइंट्स पर्टिकुलर फर्म्स ने कंप्लाई नहीं किए, तो बाकी फर्म्स जो है उसका ही एक 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 उसको बेंचमार्क लेके अपने फर्म्स में देख सकता है कि वो आपके यहाँ कंप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। दैट इज अ प्रिकॉशन मेजर विच यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ एआई, ताकि कल के दिन आप वो नॉन कंप्लायंस में नहीं पड़ो। नेक्स्ट, कमिंग अबाउट yeah, now coming types of AI tools। सर AI टूल्स तो AI तो हमें पता है, AI टूल्स भी कुछ पता है, लेकिन हमने AI टूल्स के बारे में कितना देखा और कितने पे AI टूल्स में हमने काम किया वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हर AI का अपना एक पर्टिकुलर जॉब है, एक टास्क है जिसके लिए उसे बनाया गया है। कन्वर्सेशनल AI, चैट जीपीटी, को पायलट, जिमिनी, ग्रुप, ये क्या चारों AI एक ही तरह के हैं? यस, ये चारों AI जो है वो आप बात करके अपने प्रॉब्लम्स जो है रख सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। कन्वर्सेशनल एआई है। सर मुझे रिसर्च करना है, रिसर्च करना मतलब आपको एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे रिसर्च करना है, तब आप कन्वर्सेशनल से ज्यादा अच्छा रिसर्च एआई है परप्लेक्सिटी, डीप सीक, आप इसका यूज करो। सर डीप सीक भी एआई है? यस। सर मुझे पीपीटी बनाना है, अगर आपको पीपीटी बनाना है, कुछ इमेज में चेंजेस करना है, तो आपके लिए कैनवा या गामा है। सर मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड अगर एआई चाहिए तो नोशन, ओटर एआई है। कोडिंग से रिलेटेड आई एम वेरी इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, सम आईटी रिलेटेड पर्संस, उनके लिए हगिंग फेस एंड जिट हब को पायलट इज एप्ट। सर तो इसका मतलब को पायलट अलग हो गया, जिट हब को पायलट अलग हो गया। यस। तो सर अपने में जितने लोग हैं, तो आपने कभी ग्रुप का यूज किया है क्या? और ये ग्रुप किसकी कंपनी है? कैन यू टेल मी? देवयान जी, आपने ये चारों एआई में कौन सा यूज किया है? आप म्यूट है देवयान जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। ये आपका स्क्रीन अभी विजिबल हाँ नहीं है यार, मतलब, हाँ, राइट नाउ आई कैन अपने ये सी। चारों एआई जो है अपने पास, So कन्वर्सेशनल I एआई, work चैट on जीपीटी, को I work पायलट, on जेमिनी, ग्रुप। आई वर्क ऑन चैट जीपीटी, और एक है manus.im, अच्छा। manus.im, it is an AI agent। या हाँ, मतलब मार्केट में बहुत सारे आपको एआई मिलेंगे। टू नेम And सम, मैंने कुछ when किसी को Pratik ji दिया है। was talking about how it works, या the efficiency of AI, in fact, I या wanted to speak about this tool, manus.im, manus.im. So या I am very happy with its performance. ओके। ये भी एक एआई टूल है जिस पे आप काम करते हैं, और इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? So basically, since it is an agent, it goes into other websites, whichever is public document वगैरह, वहां से वो रिसर्च करके काफी सारा इंफॉर्मेशन लाके एक जगह पे डाल देता है। So ओके। you get a greater overview before you give your opinion, your judgment. You get a better overview of what is there. So basically, it not only gives its own ideas, but it gives you options, and it also gives you the whole research done. ओके। नाउ टू एडिंग टू माय कन्वर्सेशनल एआई,
तो को पायलट जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, जिमिनी जो है वो गूगल की है, और ग्रुप जो है वो एक्स मतलब एलन मार्क्स की है। तो ये सब कंपनीज अपनी जो है एआई बनाई है। नाउ हाउ कैन एआई हेल्प आवर ऑफिस वर्क? सर यही तो हमें चाहिए था, इसी के लिए आज हम अपने टाइम को जो है पीपीटी अपने जो है वेबिनार्स में दिए हैं, टू नो हाउ कैन वी हेल्प टेक हेल्प ऑफ एआई इन आवर ऑफिस वर्क। सर आई एम वेरी श्योर दैट मैनी ऑफ अस आर डूइंग दिस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम लोग बहुत सारी चीज आज एआई का हेल्प ऑफिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं, या हमारे मोबाइल में भी आज कुछ इनबिल्ट एआई है, जैसे ड्राफ्टिंग ईमेल्स, कोई नोट्स बनाना, कोई लेटर्स बनाना, कोई रेजोल्यूशंस बनाना आज के दिन बहुत इजी हो गया है। तो एआई के हेल्प से हम ऑटो ऑटो रिप्लाई भी ड्राफ्ट कर सकते हैं ईमेल्स के, या अगर आप कुछ कंटेंट्स दे देते हो चैट जीपीटी में कि मुझे ईमेल्स बनाना ये सब पॉइंट्स में, तो भी ही हेल्प्स इट हेल्प्स यू। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ प्रिपेयरिंग ऑडिट चेकलिस्ट या टैक्स की समरीज, तो वो भी आप कर सकते हो उससे। प्रेजेंटेशन बनाना है तो एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लास्ट वाली स्लाइड थी जिसमें वो लिखा हुआ था कि कैनवास के थ्रू आप पीपीटी बना सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू भी बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, एक्सेल को फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो, एसओपी तैयार कर सकते हैं, वर्क फ्लो हमारा क्या होगा काम का, टू डू टास्क, आपकी जो डेली की टास्क है टू डू टास्क, आप एक काम करो उसको चार अपने 10 टास्क जो एक दिन की है उसको आप डाल दो, चैट जीपीटी से पूछो यार मुझे इसको सीक्वेंस कर दो, तो इट विल सीक्वेंस योर ऑल दी वर्क, और इट विल गाइड यू दैट हाउ यू कैन डू दिस वर्क। आपको हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड का कोई रिप्लाई करना हो, रिवर्स कोई ट्रांजैक्शन रिवर्स कराना हो, तो इट विल गाइड यू द ईमेल आईडी ऑफ दैट, ही विल ड्राफ्ट यू ईमेल आईडी ईमेल फॉर दैट, सो आपकी काम इजी हो जाएगी। एंड लास्ट, मिनट्स की समरी बन सकती है। सर ये बता सकते हैं मिनट्स की समरी में कैसे आपको हेल्प करता है? ये मिनट्स जो मीटिंग की मिनट्स या समरीज कैसे बन सकती है? यहाँ पे हमारे साथ ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी जो है वर्चुअली ये मीटिंग्स चलती होगी कभी क्लाइंट के साथ, या कोई जॉब में होंगे जिनकी जो है ऑनलाइन बॉस के साथ मीटिंग या क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चलती होगी। तो क्या होता है उसमें, अगर आप को पायलट ये सब को इनेबल कर लेते हो अपने, अगर पेड सब्सक्रिप्शन आपका है, या अगर ऑफिस से आपको को पायलट मिला हुआ है तो पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप इनेबल कर देते हो अपने मीटिंग्स में, तो क्या होती है एट दी, अगर 1 आवर तक आपकी मीटिंग चली एंड यू वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन दैट मीटिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप थोड़े पूरा ध्यान नहीं दे पाओ, तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग यू जस्ट co-pilot will provide you a summarized meeting details, उसमें it will highlight you what points are important discussed in the meeting, what are the problems that were discussed in the meeting, what are the solutions, and what things you have to do, it will draft you a minutes। तो सर ये तो बहुत अच्छा है ना, अगर आप मान लो आपको अगर पूरे मीटिंग के एंड में एक समरी उसकी मिल जाती है तो आपको तो ओवरऑल मीटिंग्स क्या हुई उसके बारे में पता चल गया। तो एसओपी भी आपके ऑफिस में अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे अगर आपको कोई ज्वाइनिंग करना है किसी का, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, यू कैन टेल द एआई टू ड्राफ्ट अ एसओपी फॉर दैट। So everything can be done, but you have to just think what can benefits you can take it from the AI। सर ये स्लाइड में किसी की कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस स्लाइड? ऐसा कोई है जो इसमें से कुछ काम ऐसा नहीं करता हो? सर मैंने आज तक ड्राफ्टिंग नहीं किया एआई में,
लेकिन मैं करना चाहता हूं सर, अगर आप बता दो तो आई विल ट्राई, मैं करूंगा एआई का यूज। एनीवन? सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। या सर, ऑफिस की तो आपने बता दिया कि एआई का यूज कैसे करें। सर ऑफिस के बाहर भी, सर मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट एक चीज शेयर करता हूं कि आप कभी भी ऑफिस में रहोगे तो, या आप कहीं ऑफिस में जॉब भी करते हो या आपकी खुद की ऑफिस है, तो आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि आप जो है एआई का जल्दी जल्दी यूज करो। आपका यही रहता है कि प्रोसेस नॉर्मल जो है, मैं उस नॉर्मल वर्क जो करता हूं मैं उसी से अपना काम कर दूं। लेकिन एआई का यूज करना लोग सबसे पहले अपने पर्सनल वर्क में चालू करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल, मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ सही है तो आपकी ऑफिस की लाइफ भी अच्छी होगी। क्योंकि आप पर्सनल वर्क अगर आपका बहुत ज्यादा है, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल वर्क जो है ऑफिस में भी लेके चल जाओगे। तो एआई का यूज जब आप पर्सनल यूज के लिए करते हो, क्योंकि आपकी सेंटिमेंट जुड़े रहती है पर्सनल वर्क में, तो आप जब पर्सनल वर्क में एआई के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाते हो, तो आप क्या ऑफिशियल यूज में भी एआई को यूज करते हो। तो इट्स गिव यू अ जॉय। एक आपको रिलीफ देती है कितनी कि आपकी टाइम सेव हो गई ऑफिस में। नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर एआई, तो आप क्या उसको तुरंत यूज कर लेते हो, आपको अब पता है कि अब कैसे यूज करना है। तो आप अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवल प्लान आप कर सकते हैं, आप इटनरी बना सकते हैं उससे, अपनी हेल्थ फिटनेस की शेड्यूल्स बना सकते हैं। आप उसमें डाल दो कि मुझे 5 kg वेट जो है कम करना है, कितने दिन में करना है, 1 मंथ में करना है। तो आप बताओ मेरे को, डाइट्स बता दो मुझे क्या खाना है, मुझे एक्सरसाइज, अगर मैं वॉकिंग करूंगा थोड़ा सा तो मुझे बता दो आप मुझे खाना क्या है, तो ये आपको सर चार्ट बना के पूरा दे देगा। सर अगर मुझे कुछ लर्न करना है एआई से, तो आप बोल दो आई वांट टू लर्न ब्लॉकचेन फ्रॉम एआई, प्लीज टेल मी दी नोट्स, प्लीज शेयर दी नोट्स विथ मी एंड दी शेड्यूल्स। हो सकता है आप उसमें लिख दो मैं डेली आधा घंटा ही मेरे पास टाइम है उसको पढ़ने का, तो वो 1 महीने का पूरा आपका कंटेंट्स के साथ आधा आधा घंटे का आपको मटेरियल दे देगा वो। आप 1 घंटे, आप इन अ 1 मंथ यू विल नो अबाउट दी ब्लॉकचेन। आप कुछ भी टॉपिक डाल सके, स्पेसिफिक टाइम दे दो कि मुझे डेली इतने देरी के लिए दो, तो एक कंटेंट वो पूरा आपको तैयार करके दे देगा। सर आपको अपना रिज्यूम बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, तो प्रोफाइल सीवी बनाना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपनी पुरानी वाली जो सीवी है उसको अपलोड कर दो और उसको बोलो सर लेटेस्ट फॉर्मेट में मेरे को बना दो। कुछ बहुत लंबे लंबे अगर लाइंस लिखे हैं सीवीज में, उसको वो छोटा कर देगा। और 2 पेज की अगर सीवी आप चाह रहे हैं 1 पेज में आ जाए तो वो भी कर देगा। तो आपकी बहुत सारी काम जो है एआई के थ्रू आप कर सकते हो एट अ वेरी फास्ट टाइम। शॉपिंग कंपैरिजन है, बजटिंग है, इस तरह के बहुत सारी चीजें। सर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में आपको एआई जो है उसने क्या हेल्प किया है? एनीवन? आप ट्रेवल प्लान अगर किया है कहीं, ऐसा भी आप शेयर कर सकते हैं आपने ट्रेवल प्लान किया और उसने गलत एडवाइस दे दी, या आपने न्यू स्किल्स, कुछ नया स्किल आपने एआई से सीखा। वी हैव अ वी हैव मेनी ब्यूटीफुल ऑडियंसेस टुडे, सो पार्टिसिपेंट्स, तो कोई भी एक जन अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा 30 सेकेंड्स के लिए भी शेयर करता है तो क्या है, हमें बाकी लोग को भी एक मोटिवेशन मिल जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ इट इज एन इंटरेक्टिव क्लास। So, हाँ बोलिए I'll, ना। since you have spoken about personal thing and whatever was there in your slide, या those are very basic things जो अपने करते या ही हैं. हाँ So हाँ हाँ। I'll make it more personal. या So there are friends who would like to take advice from us many a times, which are या on personal matters, right? यस। Obviously, to the GPTs, we are not disclosing their names or our names or
वट एवर द प्रॉब्लम इज। अब Okay. बहुत बार क्या होता है, पहले तो अपने को जो लगता था अपने बोलते थे। नाउ हम्म विथ मैच्योरिटी वी हैव अंडरस्टूड कि बहुत चीज बोलना नहीं चाहिए, बहुत चीज बोलना चाहिए। बहुत बार हम्म अपने उसका साइकोलॉजी भी नहीं समझ पाते, तो बहुत बार हम्म एक सवाल ड्राफ्ट करके जीपीटी को आप दो कि ऐसा एक प्रॉब्लम है किसी का अगर है, हम्म तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट आर दी ऑप्शंस, मतलब और अगर एक एक रिप्लाई क्या उसको हर्ट कर सकता है, एक रिप्लाई क्या उसको अच्छा लग सकता है, एक बैलेंस रिप्लाई क्या हो सकता है। एंड ऑब्वियसली हम्म दीज आर माय इनपुट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। या तो इससे काफी मेरे को, आई हैव सीन व्हेन आई एम कन्वर्सिंग विथ माय फ्रेंड लेटर ऑन, तो पहले मेरे से उसको जितना राहत मिलता था, अब उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं और साइकोलॉजी को समझते हुए उसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मतलब ओके। प्लान कर रहा हूँ। मैंने जस्ट अ थॉट आई हैव शेयर्ड विथ यू। नहीं, एक्चुअली क्या है, आप भी इस चीज में एग्री होंगे, आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो आपसे डाउट पूछना बंद कर दिए आफ्टर द इवॉल्वमेंट ऑफ एआई। वो अपने से पहले प्री एज्यूम्ड करके आते हैं, सर इसमें तो 1 लाख का ही बेनिफिट है, बिकॉज दे हैव नाउ सम बेसिक आइडिया। वो बेसिक आइडिया कुछ गेन कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद वो या तो हमारे पास आके खाली कंफर्म करते हैं, और या तो वो जो है एक डिस्कस करते हैं, अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है तो वो आते हैं। तो एआई कहीं ना कहीं एक पर्सनल उनको जो है इनरिच थोड़ा नॉलेज तो करता ही है। मूविंग अहेड, देयर आर ग्रेट 4 पिलर्स, फोर पिलर्स ऑफ ग्रेट प्रॉम्प्ट। जो प्रॉम्प्ट्स क्या हो गए, जो हम लोग एआई को लिखते हैं, जैसे चैट जीपीटी में हम लोग जो लिख रहे हैं हमारी क्वेश्चंस, वो प्रॉम्प्ट्स है, वो इनपुट है एआई के लिए या चैट जीपीटी के लिए। अगर हम गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट आएगा। इसमें क्या है कि आपकी जो प्रॉम्प्ट्स है दैट हैज टू बी वेरी एप्ट। आप परफेक्ट एक बार में प्रॉम्प्ट डालो, आपको दोबारा से उससे पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं दोगे तो वो आंसर सही से नहीं दे पाएगा। उसकी जो स्टडी है, उसकी जो पैटर्न्स है, उसके हिसाब से वो आपको एक आंसर तो देगा पक्का। आप कुछ भी लिखो, आप एक डॉट भी डाल के छोड़ दो ना, तो वो तब भी आंसर देगा। लेकिन अगर हमें हमें परफेक्ट आंसर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक बार में अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाए तो दैट इज बेस्ट फॉर अस। सो द पिलर्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स आर persona। persona इज whom you want AI to act as। अगर मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, टास्क, उसको क्या टास्क करना है, आप किस लिए उसको क्या चाह रहे हैं उससे। कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो या किस चीज के बारे में आपको उसको बताना पड़ेगा। फॉर्मेट, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, कोई टेबल में चाहिए, ईमेल फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। तो क्या सर हमारा हर प्रॉम्प्ट में ये चारों पिलर रहना जरूरी है? नो, नॉट नेसेसरी। अगर आपकी प्रॉम्प्ट ऐसी है कि उसमें 3 पिलर का ही जरूरत है तो आप 3 ही पिलर दो। अगर 2 ही का जरूरत है तो 2 ही दो। लेकिन अगर ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट है जहां आपकी चारों प्रॉम्प्ट्स, चारों आपको ये पिलर्स चाहिए, तो आपका प्रॉम्प्ट परफेक्ट होता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर हमें आपको एग्जांपल दे दो, लाइक अगर हम लोग कोई कॉन्टेक्स्ट का बात करें, मैं खाली बोल दिया एक्सप्लेन जीएसटी, तो एक्सप्लेन जीएसटी में तो वो कब इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो तो जीएसटी के बारे में बताएगा, डिफाइन कर देगा जीएसटी को। लेकिन मुझे पूछना क्या था, मुझे ये पूछना था कि एक्सप्लेन जीएसटी फॉर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन कोलकाता विथ टर्नओवर 12 करोड़, इंक्लूड कंप्लायंस स्टेप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। तो मेरा क्वेश्चन इतना बड़ा था जो मुझे पूछना था, लेकिन मैं अगर 2 वर्ड लिख के छोड़ दूंगा तो वो एक वेग आंसर देगा जो हमारे कोई काम का नहीं होगा। फिर हमें क्या है, सब्सिक्वेंट स्टेप्स में अपने क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ओके सर, समझ में आया। नेक्स्ट एक और हम लोग प्रॉम्प्ट लेते हैं जिसमें वो बोलता है राइट ऑडिट पॉइंट्स। ऑडिट पॉइंट्स बताइए। अब देखिए, जबकि हमें प्रॉम्प्ट क्या देना था, प्रॉम्प्ट देना था प्रिपेयर इंटरनल ऑडिट फॉर अ कोल माइनिंग कंपनी फोकसिंग ऑन इन्वेंट्री, डिस्पैच, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स एंड स्टेट्यूटरी कंप्लायंस।
तो हमने तो उसको स्पेसिफिक बताया नहीं कि ऑडिट पॉइंट्स हमें किससे रिलेटेड चाहिए था। ऑडिट पॉइंट तो कोल कंपनी की हो सकती है अलग हो, बाकी कंपनी की, आयरन एंड स्टील कंपनी की अलग हो, नॉर्मल कोई इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल ऑडिटिंग एसएससीज की अलग हो। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक विथ व्हाट यू वांट। ओके सर। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स टास्क है जहां पे मल्टीपल आपको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, तो बोलता है उसमें आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो मतलब एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ मत पूछो, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दो। जैसे आपके यहाँ कोई नया बंदा कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो आप बोलो यार एक ड्राफ्ट में या ट्रेनिंग प्लान की, वो आएगा तो उसको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक क्रिएट मटेरियल्स, उसको जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप एक मटेरियल भी क्रिएट करो। एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करो कि उसे क्या क्या सामान जो है हमें उससे लेना है, या उसको ये एश्योर करना है ये सब सामान रहे। रीराइट दी कॉन्टेक्स्ट कंटेंट एंड ईच एज सेपरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। जब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता तब तक जो है आप प्रॉम्प्ट उसको देते रहो, और सेपरेट सेपरेट करो तो वो ज्यादा अच्छा है। सब चीज एक बार में मत डालिए। ऑफिस यूज केसेस फॉर सीए एंड एडवोकेट्स। सर नॉर्मली हम लोग जो है वो चैट जीपीटी से किस किस तरह का काम कराते हैं, या एआई से। हम लोग बोलते हैं एक नोटिस ड्राफ्ट करना है तो नोटिस ड्राफ्ट कर दो, उसको पॉइंट्स बता दिए। एग्रीमेंट्स कुछ करना है तो सर ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन एग्रीमेंट्स और ये सब एमओयूज जो बनाना है उसको हम लोग और सिंपल कैसे कर सकते हैं। सर आप लोग सुने होंगे एक टेम्पलेट्स आता है। टेम्पलेट्स में क्या करता है एआई, आपकी अगर 3 पेज की एग्रीमेंट है तो 3 पेज की एग्रीमेंट में आप देखोगे कि 5 लाइन आइटम्स ऑफ द एग्रीमेंट ही चेंज होता है, और बाकी जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट सेम होता है। क्या क्या 5 लाइन आइटम, जैसे आपकी एग्रीमेंट पर्सन एक्स और पर्सन वाई के बीच में है, तो पर्सन एक्स का नाम चेंज होगा, पर्सन वाई का नाम हमेशा चेंज होगा कभी भी नया एग्रीमेंट कुछ बनेगा तो। नंबर 2, आपकी डेट्स चेंज होगी वो एग्रीमेंट की। नंबर 3, वो एग्रीमेंट की बेस चीज क्या है, वो रेंट एग्रीमेंट है कि और कोई एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हो सकता है चेंज हो जाए, एड्रेस चेंज हो जाए। तो आपको क्या है ना, वो एक टेम्पलेट्स बना के देगा जिसमें खाली आपको 5 लाइन आइटम ही डालना है और उसको सबमिट करना है। उससे क्या है, बैक एंड में पूरी की पूरी एग्रीमेंट आपकी तैयार होके पीडीएफ में आपके पास आ जाएगी। तो सर ये सही है ना, मैं पूरा एग्रीमेंट क्यों ड्राफ्ट करूं? मैं हमेशा एक ड्राफ्ट करके रख दिया, जब मुझे चेंज करनी है वो टेम्पलेट्स, मैं खाली टेम्पलेट्स खोल के मैं 5 आइटम खाली चेंज कर दिया। नोटिसेस में भी अगर मेरे को पता है कि हर दिन मुझे कोई नोटिस निकालना है या हर वीक निकालना है, उसकी कंटेंट सेम होगी, तो मैं नोटिस में खाली नाम या जिसको एड्रेस करना है उसका खाली चेंज करूंगा, तो बाकी नोटिस जो है वो सेम रहेगी। केस समरी प्रिपरेशन, कोई पर्टिकुलर केस है उसका मुझे समरी चाहिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको मुझे वो समरी दे देगा। बेयर एक्ट को सिंप्लीफाई करना है तो वो सिंप्लीफाई करके बता देगा। ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट देगा। बोर्ड की रेजोल्यूशंस, एमआईएस की रिपोर्ट्स भी वो बना देता है। सर हमारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए अगर मैं कोई बैलेंस शीट अपलोड कर देता हूँ एआई में, तो वो मेरे को रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, सजेशंस, अगर ऐसा कुछ मुझे कोई पर्टिकुलर जगह हमको अगर लगता है कि वहाँ कोई इमेज या हमको ये डालना है तो हम कंटेंट देंगे तो उसके रिलेटेड वो इमेजेस मुझे दे देगा। पॉलिसी राइटिंग, पर्टिकुलर कोई पॉलिसी बनाना है तो वो दे देगा। फोरकास्टिंग टेम्पलेट्स, तो ये सब वो टेम्पलेट्स भी मेरे को बता देगा, जो टेम्पलेट्स के बारे में पिछले स्लाइड्स में हम लोग ने बात किया। एआई फॉर ऑडिटर, सर हमारे बहुत काम की चीज है ये। जब भी हम लोग ऑडिट करने जाते हैं तो हमारा जो है वो प्रोस्पेक्टिव यही रहता है कि हम अच्छे से ऑडिट करके आए, लेकिन टाइम बहुत कम रहती है, तो हम ऑडिट उतना हो सकता है टाइम के लिमिटेशंस के चलते नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में मिल जाए तो उससे क्या है, हमारी काम थोड़ी इजी हो सकती है। हम सैंपल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स का। हम ये
कुछ हमारे पास हो सकता है इंटरनल ऑडिटर की 100 से ज्यादा रिपोर्ट है, ऐसी कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं जहां पे 100 से ज्यादा इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स है। एवरी मंथ मान लीजिए एक एक रिपोर्ट इश्यू होती है, हमें 3 साल की ऑडिट करना है, तो 36 रिपोर्ट्स तो ऐसी होगी। तो हम क्या करें, अगर 36 रिपोर्ट्स अगर हमको इंटरनल ऑडिट की पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको समरी बना सकते हैं, उसमें क्या क्या कमी है वो सब वी कैन सी इट। और वो अगर अपने को एक अपलोडिंग फॉर्मेट में मिल जाती है तो वी कैन डू दैट विद इन 5 मिनट्स, वो हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन हम उसके बेसिस पे ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग ऑडिट प्रोग्राम, हम अपने ऑडिट को, जैसे कोई अगर ऐसी कंपनी की आपको ऑडिट मिली है जिसकी आज तक आपने ऑडिट नहीं किया, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दैट। कोई सोलार बेस्ड कंपनी है, अब वो प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं आपको वो बताना है, आपने आज तक कभी सोलार बेस्ड कंपनी की वाइबिलिटी चेक ही नहीं की, तो आप चेकलिस्ट मंगा सकते हैं एआई से। चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके बेसिस पे आप अपनी ऑडिट कीजिए, आप एनालाइज कीजिए वो फिजिबल है प्रोजेक्ट नहीं है, उसके बेसिस पे सर आप अपना रिपोर्ट दीजिए। एआई फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स, सर टैक्स प्रोफेशनल के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनकम टैक्स की सेक्शंस, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो है उसको जान सकते हैं। इनकम टैक्स की नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं जो आपने बताया, इधर आ गए तो तुम तो भूल गई, तेरे को कोई मतलब नहीं है। और फिर जो है वी कैन डेप्रिसिएशन जो है, एक डेप्रिसिएशन का जैसे मैंने आपको बताया टेम्पलेट्स जो अपने यूज करते हैं एग्रीमेंट के लिए, वैसे डेप्रिसिएशन के लिए भी आप बहुत अच्छा एक टेम्पलेट्स बना सकते हैं अपने एआई के थ्रू से, जेट जीपीटी के थ्रू से। आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे ये क्लास ऑफ एसेट्स है, तो मुझे इनकम टैक्स के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, तो आप एक टेम्पलेट बना दो, तो आप उसमें फिगर डालिए, पीरियड डालिए, वो अपने आप ही जो है उस पर डेप्रिसिएशन ग्रुप ऑफ एसेट्स पे निकाल के दे देगा। तो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। सर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग अभी चैट जीपीटी में जाके और बाकी एआई टूल्स जो है उसमें जाके देखेंगे। देखने से पहले मेरा काम यही है बताना कि प्रॉम्प्ट्स हम लोग कैसे दें, ताकि वहां जाके हम लोग करेक्ट प्रॉम्प्ट्स का यूज करें अपने डेली लाइफ में भी, ताकि हमें जो है आउटपुट जो है वो परफेक्ट मिले हमारे हिसाब से। तो कुछ जो हम लोग प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं अपने लाइफ पे वो इस तरह के हैं, ये इस तरह के होने चाहिए। सिंप्लीफाई दिस सेक्शन विथ एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर सेक्शन का अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं खाली सेक्शन नंबर नहीं लिखूं, मुझे लिखना पड़ेगा सिंप्लीफाई दिस सेक्शन विथ एग्जांपल, तो एग्जांपल भी आपको दे देगा। आपको एग्जांपल नहीं चाहिए तो आप खाली सेक्शन का सिंप्लीफाई करने का लिख दो। ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल, अगर आप प्रोफेशनल वर्ड का यूज नहीं करते हो तो हो सकता है वो एक पर्सनल ईमेल टाइप का बना दे। प्रोफेशनल ईमेल्स और पर्सनल ईमेल्स में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस सर। समराइज दिस जजमेंट, कोई पर्टिकुलर जजमेंट आया तो आप उससे उसके समरी मांग सकते हो, पूरा आपको जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर एसओपी, खाली अगर आप लिखोगे एक एसओपी बना दो, एसओपी फॉर ये, प्रिपेयर मी एसओपी पॉइंट वाइज बना सकते हो उसको, आप कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन लाइक आई एम अ बिगनर, ये सिंपल आपको एज अ बिगनर समझाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू। अब सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एआई से क्या बच के रहना है, व्हाट यू हैव टू बी प्रिकॉशन, टेक प्रिकॉशन, नेवर शेयर कॉन्फिडेंशियल डेटा। सर ऐसा क्यों, सर कोई बता सकते हैं मुझे कि कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर करने के लिए क्यों मना किया जा रहा है, व्हाई? सर एआई हमारा दुश्मन है क्या? हम तो उसके दोस्त हैं। प्लीज एनीवन, कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या होता है और क्यों मना किया जा रहा है? हम अगर कोई डेटा देंगे तो वो उसके मेमोरी में जो सेव करेगा, उससे ट्रेनिंग लेगा, तो दूसरों को वो डेटा एज एन रिजल्ट दिखा सकता है, उनके एग्जाम्पल में यूज कर सकता है, और हमारा डेटा बाहर लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा।
आई थिंक सैमसंग यस। लाइब्रेरी का यही हुआ था कि कोड कुछ नहीं काम कर रहा था, तो ट्रेनर ने कोई डाल दिया और वो उस कोड को उसके कॉम्पिटिटर को शेयर कर दिया, जीपीटी। हाँ, ओके। जैसे क्या है कि आप पहली बार ऑडिट, अगर मान लीजिए कोई फ्रेशर है, वो बोल रहा है एक चैट जीपीटी मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट दो, ठीक है, और थोड़ा दिन पहले ही आपने एक ऑडिट रिपोर्ट डाला भी था चैट जीपीटी में कि ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है, देखो ये ठीक है कि नहीं, तो वो डेटा उसके पास सेव है। और जब आपने मांगा, जब एक फ्रेशर ने मांगा, तो उसके पास जो डेटा था वो वहां से उसको शेयर कर दिया। तो आपकी एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो वहां चल गई। एक्चुअली कुछ कुछ डेटा जो है दैट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव, जैसे जो लिस्टेड कंपनीज की अकाउंट्स होती है वो प्राइस सेंसिटिव है, उसमें कंपनी की कितनी प्रॉफिट बढ़ रही है, टर्नओवर कितनी है, वो सब डिटेल्स रहती है। तो अगर वो किसी के हाथ में आ जाती है बिफोर बोर्ड मीटिंग एंड एनीथिंग, so this is price sensitive, this is very price sensitive data। सर आपकी आधार कार्ड है, आपकी पैन कार्ड है, ये सब जो डेटा होती है वो सब भी कॉन्फिडेंशियल होती है। आप ये सब आधार कार्ड आपके पास दूसरे के पास चल जाने से हो सकता है कि कोई फ्रॉजरी टाइप की भी केस हो। तो वेरीफाई आपको करना है लीगल और फाइनेंशियल एक्यूरेसी। ये लीगल और फाइनेंशियल एक्यूरेसी के बारे में क्यों बोला गया है कि आप ये चीज को वेरीफाई कीजिए? एआई विश्वास करने वाले चीज नहीं है क्या? आपको क्या लग रहा है? एआई की चीज को वेरीफाई करने बोल रहा है सर? इसका मतलब बोल रहा है कि वो जो बोल रहा है आप आंख बंद करके नहीं मानो। ऐसा कभी हुआ है? कोई बताएंगे कि एआई पहले तो बोल रहे थे सर आप ही एआई यूज करो, अब आप ही बोल रहे हो कि वो जो बोल रहा है उसको मानो नहीं। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। कैन एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स प्लीज इनलाइट ऑन दिस इशू? कोई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वीडियो को बंद करके भी बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। No, it is important to verify because at the end you never know which financial year numbers is it picking up. The number could have changed because it takes data from multiple sources. The sources could be unverified, so the things uploaded in the sources might be wrong, and it is pulling data from there. So that could also be a reason why it's better to always verify legal or financial accuracy, because all your future projections or any kind of data that you'll be sharing ahead or using in your reports is based on that particular data that you're pulling from ChatGPT or any other AI. So या ideally, it's best to not consider that as the final base until and unless you have verified it. सर एक बार ओके, ऐसा हो सकता है कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कोल इंडिया की लास्ट ईयर की टर्नओवर क्या थी 2024-25 की, वो 2024-25 की नहीं लेके 23-24 की बता दिया। मैंने वही डेटा को बेस मान के अपने आगे की कैलकुलेशन कर दिया हो। एक चीज ये। दूसरा चीज, जो 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 एडवोकेट है या मान लीजिए सीए हु इज गोइंग फॉर सम ट्रिब्यूनल और अपील, उन्होंने कोई रिसर्च किया, ये मैं आपको जो केस बता रहा हूँ ये एक्चुअल केस बता रहा हूँ। ये हुआ है कि चैट जीपीटी से एक केस लॉ लाया गया था जिसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल या कोर्ट में वो केस भी दे दिया गया था कि फलाना फलाना, तो कोर्ट ने जो है ये हेयरिंग दिया है, दिस इज अ जजमेंट, दिस वर्सेस दिस, कि ये फेवर में एसएससी के हो। और फिर बैंगलोर जब बाद आईटीबीटी में का जब केस था जमा सर। हो गया तब ये पता चला वो केस जो था दैट वाज हेलोसिनेटेड। वो एक्चुअल केस कोई भी आज के दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता जब उसकी फैक्ट्स को चेक किया गया कोर्ट पे। तो इसलिए जो है, अगर केस स्टडी या कोई भी पुराना केस लॉ अगर आप देखोगे, अगर वो चैट जीपीटी आपको देता है तो दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड, क्योंकि एआई में हेलुसिनेट फैक्ट्स एंड चेक द क्रिटिकल कंटेंट्स। यूआई
यूज एआई एज योर असिस्टेंट नॉट योर रिप्लेसमेंट। ये बात से सर आप सब एग्री करोगे कि एआई जो है वो हमारा असिस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आप उसको रिप्लेस, वो आपको ह्यूमन को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ जो है तो इसी के लिए जो है एआई विल हेल्प यू इन डूइंग योर वर्क, इट इज नॉट दैट कि इट इज रिप्लेसिंग यू। हाउ नॉट टू यूज एआई? ब्लाइंडली कॉपिंग, इसके ब्लाइंडली कॉपिंग रिजल्ट्स, एक बार रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर लीजिए। यूजिंग इट फॉर कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट्स डेटा, क्लाइंट्स की डेटा। ये सर सर अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आपको कभी बैलेंस शीट अपलोड करनी है किसी की, तो आप क्या है ना, उसका डिटेल्स जो है क्लाइंट्स का वो सब हटा के अपलोड करो। विथ क्लाइंट डिटेल्स आप अपलोड मत करो, क्योंकि फिगर्स तो पता नहीं ना, फिगर्स तो किसकी भी हो सकती है। प्रॉफिट तो 1 करोड़ किसी का है, लेकिन अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के साथ है वो, तब वो कॉन्फिडेंशियल है। आप खाली बैलेंस शीट अपलोड कर दो विदाउट द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट एंड विदाउट योर साइनिंग डिटेल्स, तो यू कैन अपलोड इट यूजिंग वेग प्रॉम्प्ट्स। अगर आप वेग प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। अवॉइडिंग वेरिफिकेशन एंड एक्सपेक्टिंग परफेक्ट एक्यूरेसी, परफेक्ट एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगी सर। सर तो अभी वी विल बी डूइंग सम ऑफ द can anyone tell me draft we will draft some prompts in ChatGPT itself, so that we have a clear answer that how it works. On some of the case study we will do now. Is everyone ready for that? Yes. Okay. चैट जीपीटी की जितने भी आपकी ये रहती है, चैट्स रहती है, वो आप एक सेव कर सकते हो एक्सेल में। क्यों सर? क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हो, तो वो क्या करती है ना, वो आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे कि यहाँ पे वो लाइन आइटम्स बढ़ते रहती है, और अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते रहोगे तो ये लाइन आइटम्स बढ़ बढ़ के इतनी सारी लाइन आइटम क्रिएट हो जाएगी और चैट, कि आप भूल जाओगे, कि आप खोज नहीं पाओगे कि कौन सी आपकी वो पर्टिकुलर कंटेंट थी जिसको अभी आपको जरूरत है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको काम आएगा वो पर्टिकुलर कंटेंट, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ये लेता हूँ फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ सोलार चेकलिस्ट। मैं पहली बार मैं ये चेकलिस्ट डाला, चेकलिस्ट फॉर फाइनेंशियल वाइबिलिटी ऑफ सोलार प्रोजेक्ट, कैन यू प्रिपेयर अ डिटेल चेकलिस्ट फॉर ऑल द एरियाज टू बी कवर्ड। तो इन्होंने मुझे एक चेकलिस्ट दे दिया, प्रोजेक्ट ओवरव्यू को, टेक्निकल ओवरव्यू को, सब। अब मैं चाहता हूँ ये वाली चीज को मैं फ्यूचर के लिए रख के रखूं, तो आप क्या करोगे, यहां से देयर इज अ ऑप्शन टू शेयर। शेयर में लिंक कॉपी, आपने यहाँ से लिंक को कॉपी कर लिया, और लिंक को कॉपी करके आप यहाँ पे ये नहीं देंगे अभी हम पेस्ट रास्ता कर लगे देंगे। हैं। तो सर अगर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, तो इससे अब क्या होगा पता है आपको, कि ये फ्यूचर में आप इसको जाके खाली आप क्रोम में इसको पेस्ट कर दो, तो ये वाली आपकी जो चैट है वो वापस से वही पेज में आ जाएगी। यू कैन रिकॉल योर चैट विच इज इंपॉर्टेंट। अगर सर ये तो मतलब आपने जो टेम्पलेट्स क्रिएट करना बताया, तो मैं वो कर सकता हूँ, पर्टिकुलर एक टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट किया और उसको सेव करके रख दिया। हो सकता है कि मैंने
टेम्पलेट 1 करके क्रिएट किया, कोई नोटिस का, मैंने कोई एग्रीमेंट का टेम्पलेट क्रिएट कर दिया और उसको मैंने, उसके चैट को मैंने यहाँ सेव करके रख दिया। तो अब मुझे जब कोई बोलेगा कि मुझे टेम्पलेट 1 चाहिए, तो मैं टेम्पलेट 1 के ये लिंक को कॉपी करूंगा और क्रोम में जाके उसको सेव कर दूंगा, ब्राउजर में जाके एंटर कर दूंगा, तो वो टेम्पलेट खुल जाएगा, मुझे वापस से सर्च उतना नहीं करना। बोले ठीक है सर। नाउ कमिंग बैक कि सर ये हमारी चैट की ऑप्शन है, ये बेसिक है, ये हमें सब आता है। ये मुझे लगता है जितने लोग हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं हमें सब ये पता है कि दिस हाउ इज इट वर्क्स। लेकिन इसमें एक दो चीज है जहां पे वी नीड टू पे अटेंशन। नाउ ये पूछता भी है कि आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से क्या आप चाहते हैं कि आपकी डेटा जो है वो दूसरे के साथ शेयर करे, हम लोग नहीं करें। डेटा कंट्रोल, मैनेज लिंक, इम्प्रूव द मॉडल, पर्सनलाइज डेटा। हाँ सर, मैंने एक चीज यहाँ पे दिया है पर्सनलाइज में, प्रोवाइड मी अ समरी और टिप्स एट द एंड। जब भी हम कोई सर्च करेंगे तो उसके बाद क्या है ना, ये मुझे एक समरी उसका टिप बना के दे देगा। तो उससे क्या है, मुझे अगर मैं पूरा चैट नहीं भी पढ़ा हूँ तो लास्ट में मुझे एक पता रहेगा कि इसका ये इसका रिजल्ट क्या है, या इसमें इसने टिप क्या दे रहा है। अगर मैं यही चीज को वापस से लिखता हूँ, ये आप अपने बेनिफिट के लिए, अगर आपको लगता है कि समराइज्ड कुछ आपको डेटा चाहिए तो यू कैन डू दैट। सीए इंस्टीट्यूट का भी अपना एक चैट जीपीटी का है गॉट। इसमें क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड है। ये चैट जीपीटी की जो आप इसमें चैट जीपीटी सीए आईसीआई में जाके आप अपने मेंबरशिप नंबर डालने से आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा एंड यू विल बी लॉग इन टू द आईसीआई चैट जीपीटी। और उससे क्या होगा कि देखिए, क्विक टिप्स, इन्होंने एक टिप भी दे दिया मुझे, तो मैं इसी के लिए बोला फोकस ऑन इतना इतना इतना। तो ये पिछले बार नहीं दिया था क्विक टिप, ये इस बार दिया, क्योंकि इस बार मैंने पर्सनलाइज में दे दिया कि आप मुझे एक टिप दीजिए कि क्या इसमें करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कैन कस्टमाइज आवर ओन चैट जीपीटी। और अ, ये मैं बोल रहा था, जैसे ये वाला अपने इनकम टैक्स का है, तो अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो दिस इज अ ट्रेंड चैट जीपीटी ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वैसे ही इनकम टैक्स का भी है अपने आईसीआई का, और सीए का भी। सर इसका कोई चार्ज है क्या? नो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। फॉर मेंबर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ सर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आर, अब सर हमें कुछ आप प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता रहे थे। यस, तो प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज ऑन बोर्डिंग प्रोसेस सिस्टम। तो प्लीज प्लीज लिस्ट डाउन दी स्टेप्स इन एम्प्लॉय ऑन बोर्ड प्रोसेस। क्या क्या ऑन बोर्ड प्रोसेस का होता है, तो ये पूरा डिटेल्स में दे देता है, लेकिन फिर मुझे फिर वापस से पूछना पड़ता है कि अब स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना ऑन बोर्ड जब मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉयज को, तो देर आर मेनी स्टेप्स। तो एक बार में मैं पूरा इंस्ट्रक्शन उसको चैट जीपीटी को नहीं दे सकता हूँ, मुझे आई हैव टू गिव हिम सिंपल ऑल दी प्रॉम्प्ट्स सेपरेटली। तब वो क्या है, मुझे वो पर्टिकुलर आंसर मुझे जो चाहिए आई विल गेट इट। इसमें जो है कुछ कुछ चीज जो हम लोग चैट जीपीटी से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि सीवी अगर मैं अपलोड करता हूं तो ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो मेरे सीवी के हिसाब से दे सकता है। तो मेरा जो टेक्निकल राउंड है वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। अपने एचआर राउंड के लिए भी मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ मुझे एचआर राउंड के आप 5 क्वेश्चन दीजिए, 10 क्वेश्चन दीजिए। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वी कैन डू। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सेल, सर हम लोग क्या
आज खाली चैट जीपीटी के बारे में पढ़ेंगे? बोलेंगे नहीं, हम लोग चैट जीपीटी को आज अपने एग्जिस्टिंग वर्क में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वी विल लर्न कि आप एक्सेल सीट में कैसे जो है एआई का यूज कर सकते हो। सर ठीक है, अब देखिए, आई हैव अ एक्सेल सीट विथ मी, दिस एक्सेल सीट, या मैं, मेरे पास 3 सीट है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ऐसा, मेरे पास अभी 3 है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारी सीट हो, 100 से ज्यादा सीट हो या 50 से ज्यादा सीट हो। मुझे क्या होता है, इंडिविजुअली एक एक करके या तो जाना पड़ता है, नहीं तो इसको और एक्स, इसको एक्सपेंड करके जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं मैं होम में ही रह के, जब मैं 6, मैं 3 दबाऊं तो मैं इसमें आ जाऊं, 2 दबाऊं तो इसमें आ जाऊं, 1 दबाऊं तो इसमें आ जाऊं। ये कैसे हो सकता है? बोला सर ये तो आप हाइपरलिंक क्रिएट किया है। तो हाइपरलिंक क्या मैं एक एक सीट में जाके क्रिएट किया हूं? बोला कि हाँ सर। नो, मैंने इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू किया। जैसे मेरे पास डेटा है 3 सीट में, मैं ये डेटा को अपना डिलीट कर दिया। ओके, मैंने चैट जीपीटी में जाके उसको ये बोला वीबीए कोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैं इसके जो फंक्शंस है उसको रिकॉल कर रहा हूं। वीबीए कोड जो होता है वो एक्सेल में हम लोग कॉपी कर देते हैं। जैसे मैंने उसको यही बात बोला, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपको वो बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि आई नीड अ वीबीए मैक्रोस दैट क्रिएट्स होमवर्क शीट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्कबुक। जो आपने देखा सबसे पहला सीट मेरा होम के नाम से था। अगर आपको वो होम के नाम से नहीं चाहिए तो आप लिख दो मुझे ये नाम से चाहिए। ठीक है, नेम द न्यू वर्कशीट होम, ऐड कॉलम, सीरियल नंबर उसमें रहेगा, नेम ऑफ द शीट्स रहेगा, है ना, और क्या होगा उसमें, और पॉपुलेट अ लिस्ट ऑफ ऑल दी वर्कशीट, जितने वर्कशीट होंगे सबका उसमें आ जाए। मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा मुझे 3 ही चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला अगर उसमें 50-100 सीट्स भी रहेंगे तो भी यही लगेगा। एड हाइपरलिंक टू ईच सीट नेम, सीट नेम में अपने आप जो है हाइपरलिंक भी लग जाए ताकि मैं उसको क्लिक करूं तो नेविगेट हो जाए। नंबर द सीट सीक्वेंसली इन फर्स्ट रो, मतलब सीट सीरियल नंबर जो है फर्स्ट रो में हो। फॉर्मेट द शीट नेम इन हाइपरलिंक कॉलम विथ ब्लू फॉन्ट, सर मुझे दूसरे कलर चाहिए तो आप कलर चेंज कर दो, एंड सिंगल अंडरलाइनिंग। ठीक, अगर आप खाली हाइपरलिंक भी कर दोगे तो भी चलेगा। ऑटो फिट द कॉलम टू एडजस्ट विथ, ऐसा नहीं हो कि मुझे एडजस्ट करना पड़े, आप ऑटो फिट भी उसको कर दिए। एक्टिवेट द होम शीट एट द एंड ऑफ द मैक्रोस, जब हो जाए उसके बाद उसको एक्टिवेट कर देना। ठीक है, प्रोवाइड द कंप्लीट वीबीए कोड। उसने सर कुछ प्रोग्रामिंग करके वीबीए कोड मुझे एक लिख के दिया। सर मुझे क्या ये वीबीए कोड चेक करना है? नहीं, मुझे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उसने नीचे स्टेप भी बता दिया कि अब क्या करना है। सर ये बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, मैं खाली बता रहा हूँ आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। आप इसमें एक्सेल में बहुत तरह के काम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस वीबीए कोड। ये खाली मैं आपको एग्जांपल के लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। एक्सेल में आप जितनी तरह की मल्टीपल टास्क करते हैं आप सब काम वीबीए कोड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो सर अब हमें क्या करना है? सर ये हमारी एक्सेल सीट थी, आपको यहाँ पे आके फंक्शन F11 प्रेस करना है। तो ये वाली एक स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे इंसर्ट में आपके यहाँ मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल में आपको कॉपी कर देना है वो वीबीए कोड। वीबीए कोड कॉपी करके आपको इसको बंद कर देना है, इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे आके आपको Alt F8 दबाना है। सर हमें याद नहीं रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जब ये
करोगे तो नीचे लिखा रहेगा ओपन योर वर्कबुक, ऑल्ट F11, इंसर्ट मॉड्यूल, क्लोज द VB एडिटर, ऑल्ट F8। तो सर क्या F8 करने से हमारा काम हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑल्ट F8, अब रन। नाउ आप ये देख सकते हैं कि आपकी जितने भी ये होम से आपकी एक नई सीट आ गई है। इसने सीरियल नंबर क्रिएट कर दिया है, सीट नेम कर दिया है। तो अब मैं जैसे ही रिवर्स्ड ऑप्शन क्लिक करता हूं तो शीट में ये आ जाती है। तो सर क्या मेरे को जो समझ में आ रहा है इसमें कि जो हम लोग मैक्रोस करते हैं, अपलोड करने के बाद एक बटन दबाते हैं तो जितनी भी हमारी सेव्ड मैक्रोस रहती है वो कर देता है। बोला हाँ, वो मैक्रोस है, ये VBA मैक्रोस है। इसमें चैट जीपीटी से आप अपनी स्ट्रक्चर्ड जो है वो लिख के एक कोड लेके मॉड्यूल्स में डाल के एक क्रिएट कर सकते हो। सर ये वाले देख के लगा कि अपने को ये चीज कुछ नया पता चला या इसमें अपने और आगे कुछ काम कर सकते हैं। एनी आइडियाज ऑन दिस? कि कुछ डाउट्स है इसमें कि सर ये आप ही से हुआ, हमसे तो नहीं होगा, या हम लोग इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, या इसको हम लोग यूज कर रहे हैं? अगर कोई ऑलरेडी कोई पार्टिसिपेंट है जो यूज कर रहा है तो ही कैन शेयर हिज व्यूज, या इसमें हम लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं, या किसी को डाउट है कुछ कि इसकी यूज में कि ये कैसे करेंगे नहीं करेंगे। अगर सर किसी की डाउट नहीं है तो मैं ये समझूं कि सबको समझ में आ गया, या मैं ये समझूं कि किसी को समझ में नहीं आया? क्योंकि सर आप पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थोड़ा इंटरेक्शन आते रहेगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, मूविंग टू अ नेक्स्ट थिंग, ये हम लोग ने ये देखा कि हमने इंटीग्रेट कर लिया चैट जीपीटी को एक्सेल के साथ। तो मैंने बोला चैट जीपीटी इज नॉट अ 100% सोल्यूशन। सर मैं चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं चैट जीपीटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। चैट जीपीटी या तो आप को पायलट या तो जिमिनी, ये सबका यूज आप कर सकते हो। ऑल आर कन्वर्सेशनल AI, so you can use any of them for this result। आपको सब में ये रिजल्ट मिलेगा। नाउ अबाउट टॉकिंग अबाउट दी अदर थिंग्स, एक जन ने मेरे साथ एक शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। उसने क्या किया था, दिशा के एग्जाम के लिए उनकी बुक की पूरी PDF कॉपी मिल गई थी। उन्होंने पूरी PDF कॉपी को अपलोड कर दिया था चैट जीपीटी में, और 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 उन्होंने ये चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे जो है वो आप FCQ क्वेश्चंस दे दीजिए जिसमें जो है हर चैप्टर से 5-5। तो उन्होंने MCQ क्वेश्चंस जो है उससे तैयारी करके अपनी दिशा का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब एक और बहुत ही अच्छा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रिएटिंग ऑफ फ्लो चार्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो समझाना पड़ता है अपने कोलिग्स को या अपने क्लाइंट्स को कि दिस इज दी प्रोसेस। तो अगर आप उसको फ्लो चार्ट एक बना के दे देते हो तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे वर्ड्स में या किसी चीज में, तो याद है हमें वो with the help of the charts and everything, images जो है हम लोग उसको यूज करते थे। नाउ इसमें हम लोग को बनाने के लिए
चैट जीपीटी के हेल्प से व्हाट वी कैन डू कि एक मरमेड कोड हमें चाहिए, जैसे एक्सेल में वीबीए कोड चाहिए था, वैसी फ्लो चार्ट के लिए हमें एक मरमेड कोड चाहिए। तो मैं इधर एक इसको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि प्लीज प्रोवाइड मरमेड कोड टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटिंग द स्टेप्स shown above, प्लीज मेक इट सिंपल एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे तो उनका स्टेप क्या है, तो उनको पता रहेगा कि आप जिस दिन ज्वाइन करोगे उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी चेकलिस्ट बनेगी, आपको ओरिएंटेशन करना है। तो दिस आर ऑल दी थिंग्स विच यू हैव टू डू। तो उसने मुझे एक मरमेड कोड दे दिया। सो दिस इज द मरमेड कोड विच इट हैज प्रोवाइडेड। ये जो मरमेड कोड आया है, दिस इज रिलेटेड टू converting from a superannuation plan to NPS plan। तो दिस इज द मरमेड कोड विच आई हैव गॉट। तो इसको सर मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन अब मैं इसको मरमेड कोड जो है इसको एक्सेल में नहीं, देर इज अ AI कॉल्ड ड्रॉ आईओ साइट में मैं चल जाता हूं और मैं वहां जाके इंसर्ट अरेंज में इंसर्ट में जाके मरमेड, और मैं यहाँ पे जाके वो कॉपी कर देता हूँ कोड को। तो देखिए सर, मुझे एक चार्ट जो है वो विद इन अ मतलब लेस देन इन 1 मिनट आई हैव गॉट दिस चार्ट रेडी। सर मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो हेयर। अब इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं इसको सेव कर लूँ। इसको मैं सेव, आई कैन सेव इट इन HTTP में जो सेव कर लूँ, PNG में सेव कर लूँ, किसी में मैं एक बार सेव यहाँ से कर लूँ। डाउनलोड्स में मैंने सेव कर लिया एक बार। नाउ ये डाउनलोड्स में मेरे पास आ गई। अगर मुझे इसका प्रिंट लेना है तो आई कैन ईजिली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। मुझे PDF में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको PDF में कर लिया। तो आप ये देख सकते हो कि आपको फ्लो चार्ट कोई भी चीज का बनाना है, लाइक बायबैक ऑफ शेयर्स की क्या हो सकती है। क्लाइंट आपको फोन करके पूछ रहा है सर मुझे बायबैक ऑफ शेयर्स करनी है, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो आप उसको अगर एक 10 मिनट आधे घंटे के अंदर एक फ्लो चार्ट दे देते हो तो आप सोचिए क्लाइंट की कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ जाएगी। उसको एवरी टाइम वो नॉक नहीं करना पड़ेगा कि क्या ये फ्लो चार्ट रहेगी, वो अपना चिपका देगा, या आपको कोई पॉलिसी बताना है, SOP बनाना है, आप SOP बना के डाल दिए तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एवरीवन। तो फ्लो चार्ट कैन बी डन विद इन अ, यू कैन से विद इन अ मिनट ऑफ टाइम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ चैट GPT एंड अदर AI टूल्स वी कैन we can do our work very easily and we can save our time। Now coming back to the PPT, सर वही बोल रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से इसमें यही दिया है कि कैसे हम लोग अपने AI को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। लाइव डेमो, वीक प्रॉम्प्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट में कैसे कन्वर्ट करें, वही जो हम लोग GST का देखे प्रॉम्प्ट वो था। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या होता है सर कि AI हमें रिप्लेस तो नहीं करेगा, बल्कि हमें उससे अच्छे से काम लेना है। बट प्रोफेशनल्स यूज AI विल रिप्लेस, ठीक है। नाउ सर कुछ AI टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, विच इज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द PPT में हम लोग देख रहे थे कुछ कि हमारे पास और भी AI टूल्स है, लेकिन क्या है हमें पता नहीं उसके बारे में, AI टूल्स के बारे में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी नो व्हाट आर द AI टूल्स। सर मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर आप AI को बोलते हो कि मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, आप उसका एक फोटो बना के दो। नाउ
your text is converted in a video. तो कहीं अगर आपको प्रेजेंट करना है कुछ या एक फॉर बेटर, हाइलियो एआई इज द वेबसाइट. मैंने एक इसमें यही लिखा था, अ बॉय इज स्टैंडिंग टेकिंग डायनासोर राइड. तो देखिए उसने अपने से इमेजिन करके मुझे ये वीडियो बना के दिया. तो ये वीडियो आप और थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं. अगर आप इसमें आपको अपनी फोटो अगर लगानी है तो आप वो भी कर सकते हो. तो दिस इज टेक्स्ट टू वीडियो है, इमेज टू वीडियो भी आप चाहे तो कर सकते हैं, अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एआई. मूविंग टू नेक्स्ट, एआई कन्वर्टिंग वीडियोस टू ऑडियोज. सर वीडियोस टू ऑडियोज की क्यों जरूरत है? कोई बता सकते हैं हम वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट क्यों करेंगे? अरे वीडियो देखना तो मैं वीडियो ही देख लूंगा ना, मैं वीडियो सुन लूंगा, मैं उसको ऑडियो में क्यों कर रहा हूं? कैन एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कैन गेस व्हाट इज द रीजन फॉर कन्वर्टिंग अ वीडियो टू ऑडियो? Although I'm not sure about the answer, of course, if someone has to listen to the audio of the video, then he can always not look on the screen and still hear the audio. But I think the size of the file might get reduced if we use an audio file in place of a video file. Apart from this, I am not sure if Suppose anything. I give you example that you have to go for a banking audit. You have to get a audit from a bank. So maybe the person on the other side of the chair will surely ask you, sir, what is your experience about it? And he may take a slight interview of you, but you have never been to a bank audit, or you are not very close to the banking terms and all. So what you get, a 1 hour of video, you log into the YouTube and you saw that there's a video for banking audit and something like that. But you don't have so much time to watch the whole videos and then jot down the points. So what you can do, you can take that video, you can copy the URL of this video and convert it to the text. After that text in PDF, you can upload it to the chat GPT and tell what are the relevant points in that. Give me at least 10 points, only 10 points, important points relating to banking terms. So you can get a whole 1 hour video converted to just 10 points, or you can tell ChatGPT that in this whole video of 1 hour, highlight me the 10 points. So you are just reading the 10 points and you are getting the overview of 1 hour of videos. Isn't it good? So these Yeah, are of course, if the audio reduces the time period yeah. of the video, then of course it is useful. तो ये वाला का एक प्रैक्टिकल हम लोग करके अभी देखते हैं कि इस तरह का काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि these are very helpful for us. Turbo subscribe. या ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास कोई चीज की, मतलब हमें कोई लिरिक्स चाहिए कोई वीडियोस की, या अपने अपने को ये जैसे यूट्यूब में मैं कोई पर्टिकुलर अगर ये देखता हूँ कि कोई भी वीडियो का, अगर चाहे मुझे इसकी यूआरएल ले लेता हूँ मैं. अब मेरे पास अगर उतना टाइम नहीं है, मैं नहीं सुन सकता हूँ, अगर मान लीजिए, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक द यूआरएल ऑफ द वीडियो. हो सकता है वो एजुकेशनल भी हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले लिया.
ट्रांसक्राइब द फाइल। अगर वीडियोस मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ से उसको अपलोड कर दूंगा, और डाउनलोडेड नहीं है तो यू कैन जस्ट इंपोर्ट। ये इंपोर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मैंने कुछ बड़ा वीडियो लिया, तो हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। आफ्टर इंपोर्टिंग व्हाट विल हैपन, जैसे मान लीजिए इन केस यही वाला वीडियो अपलोड हुआ, तो इसमें क्या है, इसमें ये ऑप्शंस देगा कि आपको वो कैसा चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट कैसा चाहिए। तो ये पूरे वीडियोस को जो है उसने ऑडियो इसमें कंप्लीट कर दिया और रिटर्न में ला के दे दिया मुझे। मैंने उसको डाउनलोड ही कर लिया ऑडियो को, इसमें कन्वर्टेड टू दी पीडीएफ, मैं इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर दिया। अब आई हैव दी होल वीडियो, जो पूरा गाना था उसने मुझे वो 5 लाइन्स या 6 लाइन्स में दे दिया। अब मैं आई विल अपलोड दिस पीडीएफ in ChatGPT and tell him कि this is a downloaded audio converted in text. Please remove all necessary text. Provide me in PDF in a song format. This is a downloaded song converted in text. Please remove all unnecessary text and provide me result in PDF in a song format. तो सर आप जब वीडियोस कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो या ऑडियो में कन्वर्ट करते हो, तो उसके बाद क्या होती है ना, उसमें बहुत सारा, उसमें से बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियोस। तो वो सब क्या है, वो सब वीडियोस को जो है चैट जीपीटी हटा के जो रेलिवेंट पॉइंट्स है उसको ही खाली वो रखेगा, और बाकी सबको जो है वो वो आपको आउटपुट जो मिलेगा, दैट आउटपुट विल ओनली द रेलिवेंट पोर्शंस ऑफ दैट। We need to perform this again because these sometimes the results are not accurate what we are thinking of. So we can again, this songs is not been processed, yeah, complied in provide in text format. देखिए सर, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने मांगा तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया मुझे अच्छे से, और वो भी जो फॉर्मेट दिया है दैट इज ऑन अ सॉन्ग फॉर्मेट में इसने दिया है, ऐसे पूरे लाइन को उसने लंबा नहीं कर दिया। अब इसको मैं वर्ड में लेके अपने पीडीएफ में सेव कर सकता हूँ। So this what we can do from this, from the, this is a free software। मैं जितने आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ all softwares are free of cost। इसमें अगर आपकी लिमिट जो है खत्म हो जाती है तो आप अपने ईमेल आईडी, तो जीमेल की और कोई ईमेल आईडी है तो आप उससे लॉगिन कर लीजिए, वहां भी यू एवरी डे यू गेट एटलीस्ट 3 वीडियोस विच यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम हेयर। सो दिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है। Devyan ji, what was it clear converting the audio to PDF? Yeah, of course, of course. Yeah.
So, moving to our next side, what we can see, डीप सर्च। इसके बारे में हम लोग ने बात किया है कि डीप सर्च जो है वो अगर स्पेशलाइज्ड है फॉर पर्टिकुलर, अगर मुझे बहुत डीपली कोई चीज के बारे में जानना है, मतलब ओवरसाइट तो सब चीज का मान लीजिए चैट जीपीटी या कन्वर्सेशनल एआई में है, बट स्टिल आई हैव टू रिसर्च ऑन इट। मतलब सर तो डीपली मतलब क्या करेगा वो? डीपली इट विल रिसर्च ऑन इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम, मतलब ये सब प्लेटफॉर्म में भी अगर वो सब आर्टिकल्स हैं न्यूज में, तो वहां से भी डेटा लाएगा। तो सर उसका रेस्पॉन्स टाइम इट विल बी मोर देन व्हाट यू आस्क इन दी चैट जीपीटी। द रेस्पॉन्स टाइम इज लेस इन चैट जीपीटी बिकॉज उसका इंटरनल डेटा है। वो आउटर इंटरफेरेंस से, आउटर डेटा से बहुत ज्यादा ही इज नॉट कन्वर्सेंट विथ व्हाट चैट जीपीटी। लेकिन डीप सर्च जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा। सो डीप सर्च मेरे को दिखाने का मोटिव यही है कि दैट यू नो दैट that this is also a platform from where you can get more information. Not getting logged in. ये भी अगर आप देखोगे लॉगिन करने के बाद, तो ये आपको इसकी प्लेटफॉर्म भी जो है वो चैट जीपीटी के जैसी है। ये सब लॉगिन ईमेल बेस्ड है। इट कैन नाउ नाउ इफ आई वांट, देखिए ये भी उसी तरह का इंटरफेस है। आपकी चैट्स जो है वो यहाँ आती है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं कोई आर्टिकल के बारे में, व्यूज ऑन, हाँ इधर कवर है, उसको क्या रोक 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 देना है कि नहीं? तो इट इज डूइंग इट्स रिसर्च। तो इसका रिप्लाई जो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ चैट जीपीटी, अगर आप कंपेयर करोगे सेम चीज को लिख के, तो इट विल हैव सम डिटेल्ड डिटेल्ड आउटपुट्स इट विल हैव। अब चैट जीपीटी में जब इसको डालते हो तो आपको हो सकता है इतना बड़ा रिप्लाई नहीं आए। मैंने तो स्पेसिफिक नहीं डाला। अगर आपको स्पेसिफिक इशू पे डालोगे तो वो सोर्स भी बताएगा कहाँ कहाँ से उसने लिया है। तो दिस इज अ रिप्लाई। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज में रिसर्च कर रहे हो तो डीप सीक इज अ वेरी गुड एआई टूल फ्रॉम वेयर यू कैन get a lot of data which will be relevant for you for your research. Now एक चीज और है विच आई वांट टू से दैट, कभी बहुत बार व्हाट वी डू कि हम लोग कोई भी पीडीएफ फाइल को मर्ज करते हैं या उसको कॉम्प्रेस करते हैं। तो आई लव पीडीएफ, ये सब कितने लोग यूज करते हैं? आई लव पीडीएफ फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, कैन एनीवन टेल हाउ मेनी पीपल of you use I love PDF या small PDF सॉफ्टवेयर? यस सर, यही का है। या यस सर, 2 जन का है, अमित जी का, निखिल गर्ग जी का, कि वी यूज। तो हम लोग जो आई लव पीडीएफ यूज कर रहे हैं, इससे वी आर शेयरिंग आर डेटा टू देम। ये अपलोड हो रहा है उनके उनके सर्वर में अपलोड हो रहा है, तो वी आर शेयरिंग द डेटा। तो अगर मैं ये बताऊं कि एआई के मदद से
आपको अगर एक आपके इंटरनल आपके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर मिल जाए विच इज नॉट चार्जेबल, वो आपकी मर्ज भी करेगा डेटा को, पीडीएफ को वो स्प्लिट भी करेगा, वो कॉम्प्रेस भी करेगा, तो वो कितना अच्छा होगा, बिकॉज यू विल हैव सम सेफ्टी ऑन योर हैंड. सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द पाइथन कोड जो हम लोग एक बनाते हैं, वो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और इट कैन बी क्रिएटेड. सो अगर वो किसी को चाहिए तो आई कैन हेल्प हिम, नॉट अ प्रॉब्लम. और विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द थिंग्स विच जो अभी चैट जीपीटी क्रिएट करता है आपकी जगह जो पाइथन कोड्स या इंस्ट्रक्शंस, तो वो सब हम लोग जुपिटर में भी कर सकते हैं. जुपिटर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर which is generally used by many of the professionals. वो मे बी हम चार्टेड अकाउंटेंट्स यूज या प्रोफेशनल यूज नहीं करें, लेकिन हु आर वेरी कीन इन परफॉर्मिंग एआई थिंग्स एंड एआई सॉफ्टवेयर, दे यूज जुपिटर, क्योंकि उनका जितना भी ये सब प्रोग्रामिंग होता है वो जुपिटर वो बनाते हैं ऑफलाइन में, मतलब ऑनलाइन बेस्ड नहीं रहता है, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स सब शेयर कहीं होती नहीं है. तो मतलब we can also use Jupyter also in that. So now I think we are ready for the question answer rounds, if any there are from the audience's side. This was all from my side. Devyan ji. Yes, the platform is now open, so anyone who has a query can unmute himself and raise a query. And of course, if for some reason they are not comfortable doing that, can surely write in the chat box. Yeah, actually, Tar Tarak Nath Dej has the member has written that he need a PDF converter. He has also provided his email ID. So I will make that available. Okay, sir, I have noted your email ID. I will. Which is Amit ji has given very informative session, sir. Thank you, Amit ji. Sarita, which is the best paid version for us? Actually, best paid version में what I feel कि अभी AI का इवॉल्वमेंट हुआ है, तो अभी पेड वर्जन अपने को यूज करने का जरूरत नहीं है. नाउ चैट जीपीटी में क्या होता है ना, बहुत बार आप देखोगे कि आपकी लिमिट खत्म हो गई, आप और बात नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप एक ही बार बात की हो फिर भी बात और नहीं कर पा रहे हो. द रीजन इज दैट कि ये टोकन्स पे जो है ना अपनी कंजम्पशंस लेते हैं. जैसे व्हेन यू अपलोड अ पीडीएफ या व्हेन यू टेक्स्ट इट, जब आप टेक्स्ट करते हो ना तो आपकी टोकन कम लगती है. जब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देते हो तो आपकी टोकन्स ज़्यादा यूज हो जाती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है एआई, या ऑन द बेसिस ऑफ टोकन्स पे ये रीड करता है, अपने यूज करता है टोकन्स को. तो आपको एक लिमिटेड टोकन्स दिया हुआ है फ्री सब्सक्राइबर्स को. तो आप जितना जल्दी उसको टोकन खत्म कर दोगे, आपका उस दिन का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे वापस आपको टोकन मिल जाएगा. तो अगर आपको सेम डे में काम है तो इट्स बेटर कि आप जो है वो 2-3 यूजर आईडी से लॉगिन कर लो. तो मेरा एडवाइस यही है कि एआई टूल सब अच्छे हैं, इट इज जस्ट अबाउट योर यूज कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं. बाकी और सब एआई टूल्स इज गुड. Yeah, I have also noted down your email ID. So I will also share this PDF converter with Devyan ji, so that you can also contact him. All who required can get it from him also.
If possible, Pratik ji, you can also share it in the chat box. And of course, you can also send it to me. Yeah, actually, a tool that I have to send it through email only, no? That's why with the instruction how Okay, to. okay, Yeah, fine. yeah. Sir, I need PDF converter. Biswaroop ji has also asked for the PDF converter. Okay, I have noted down the email ID. Sarita ji, sir. The session was very good and learned a lot of things. Please share the XLS which you have prepared. Okay. The Excel sheet which I have prepared, I will share it with the ACAE, the PPT as well as the Excel sheet, so that members can go through it later on. Any more queries? Or yeah, over to Devyanji. So, friends, is there any other query? I think it's more of a vote of thanks that is coming from the members for this excellent session that you have taken. As it seems, there is no other query. I think we can call it a day. And from the side of ACAE, Pratik ji, we are very much thankful to you for taking this session. I think uh, a few years back, we were talking about how the GST notices keep bothering us, updating every Yeah, day. I think AI is a space which is, in fact, updating itself faster than that of GST, yeah, but in the same terms has also helped us to now summarize those notifications which are coming on regular basis. Now AI has, so professionals were saying that we have to update ourselves every now and then, going through so many notifications, but mm, AI can of course at least summarize that for you. Of course, there is no substitute of professional judgment. We have to go through these documents because even if something important gets missed, we all know we can win a case only because of a difference of a comma or full stop. yeah, So that professional judgment cannot be provided by AI. That will only come from our experience. But of course, AI is a great, great help for all of us. And I am sure that the way you have explained and you have introduced a few AI tools which we were not aware of will now, of course, help all the members who have attended this group discussion today. Thank you, Pratik ji, from the core of my heart and from on behalf of all the members attending this program. And I would also add that, friends, we have these kind of group discussions regularly. So we will come up with more of different sessions. A few would be traditional, which would be required as per the current need. And of course, there would be futuristic sessions too. So keep following us, keep and remain engaged, and see you again in the coming group discussions. And Pratik ji, of course, we will call you in many more platforms and programs where we can uh, get some more thoughts from you and upgrade ourselves. Thank you very much. thank you, thank you, thank you.